ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جنوبی ریاستوں سے نریندر مودی کا تعصب، شمال جنوب توازن کو بگاڑ دیا گیا۔ میڈیا سمٹ سے وزیر اعلیٰ کا خطاب، باپو گھاٹ پر مہاتما گاندھی کا بلند قامت مجسمہ ہوگا۔ عوام پر 18,000 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاری، ڈسکام کی تجاویز کو مسترد کرنے کا کے ٹی آر نے کیا اعلان۔ کانگریس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کے ٹی آر کا دعویٰ۔ 4 دن ٹھہر جائیں، ریونت ریڈی کون ہے معلوم ہو جائے گا، کانگریس کا جواب۔ ڈرگس منتقلی کے خلاف سٹی پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، بین ریاستی اور مقامی پیڈلرز گرفتار، 13 لاکھ روپے مالیت کے ڈرگس ضبط۔ ایپل موبائل فون کے نقلی ایکسیسریز کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار۔ پٹاخوں کے غیر قانونی ذخیرے کرنے والا بھی حراست میں، سینٹرل زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان، جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت جنوبی ریاستوں سے امتیاز برت رہی ہے۔ فنڈز کی اجرائی میں ان ریاستوں کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے، جبکہ شمال کی ریاستوں پر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ میڈیا کے ایک ادارے کی جانب سے پروگرام سندرن رائزنگ سمٹ کا افتتاح کر رہے تھے۔ اپنے کلیدی خطبے میں وزیر اعلیٰ نے کہا، ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر منموہن سنگھ تک
कांग्रेस के तमाम वज़राए आज़म ने शुमाल और जुनूब के दरमियान तवाज़ुन को बनाए रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तवाज़ुन को बिगाड़ कर रख दिया। जब वज़ीर आज़म शुमाल से होते तो सदर जमहूरिया का जुनूब से इंतखाब किया जाता। इस रिवायत को नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया। जुनूबी रियासतें मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देती हैं। जुनूबी रियासतें 1 रुपया मरकज़ को टैक्स देते हैं तो उन्हें सिर्फ 40 पैसे ही वापस किए जाते हैं, जबकि शुमाल की रियासतें जब 1 रुपया देती हैं तो उन्हें इसके बदले 7 रुपए के फंड्स दिए जाते हैं। पंडित नेहरू के दौर में भाखरा नंगल और नागार्जुना सागर जैसे अजीम प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। इंदिरा गांधी के दौर में गरीबी हटाओ के अलावा सब्ज इनकलाब, सफ़ेद इनकलाब के जरिए मुल्क को खुद मुख्तफी बनाया गया। राजीव गांधी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, कंप्यूटराइजेशन में इनकलाब बर्पा किया। नरसिम्हा राव ने लिबरलाइजेशन के जरिए मईशत को ओपन किया। मनमोहन सिंह ने किसानों, बेरोजगारों को रोजगार गारंटी दी और कई इनकलाबी काम उनके दौर में अंजाम दिए गए। वजीर आला ने सवाल किया कि गुज़िश्ता 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मुल्क को क्या दिया। जुनूब के साथ तासुब, अपोजिशन रियासतों की हुकूमत को इनराफ के जरिए ख़त्म करना, समाज में नफरत को फ़रोग़ देना। उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट पर कहा कि मूसा व ईसा नदी के दुआबे पर वाक़े बापू घाट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दी जाएगी। जिस तरह साबरमती रिवर फ्रंट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बुलंद क़ामत मुजस्समा कायम किया गया, उसी तरह बापू घाट पर महात्मा गांधी का बुलंद क़ामत मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला ने बीजेपी से सवाल किया कि साबरमती रिवर फ्रंट को अंजाम देने वाली बीजेपी मूसी रिवर फ्रंट की क्यों मुखालिफत कर रही है। उन्होंने बीआरएस को भी मुखालिफत पर सवाल उठाए। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने खिताब में उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मैं साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी से, आओ मिलो। हम सरकार से चुनकर आए सो सर, हम ऐसे वैसे आके कुर्सी में नहीं बैठे। जनता की आवाज सुनकर, जनता मैंडेट दिए तो हम लोग सरकार बनाए, जनता की सरकार बनाए। हम लोग सरकार को चलने दो, अगर आपको पसंद नहीं है तो घर में बैठ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोकने के लिए कोशिश किए ना, वो जनता देख लेंगे। क्योंकि आपको सरकार से उठा के अपोजिशन स्टेटस दिए, मगर पार्लियामेंट में 4 महीने में आपका बीआरएस का परफॉर्मेंस देकर पार्लियामेंट चुनाव में 0 दिए, 17 सीटों में हरा दिए, 7 सीटों में डिपॉजिट जब्त हो गए। 37% वोट से 16% वोट तक बीआरएस के सरकार और 4 महीने में वोट गिर चुका है। तो जनता टाइम एंड अगेन दे आर गिविंग देयर वर्डिक्ट। ही हैज टू अंडरस्टैंड, ही हैज टू लर्न फ्रॉम द पब्लिक। जनता क्या सोच रहा है, जनता क्या चाह रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नवंबर के आखिर तक स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जुबली हिल्स में अपनी क़यामगाह पर स्पोर्ट्स पॉलिसी पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने सबसे बेहतरीन पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी। ज़रूरत पड़ने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के स्पोर्ट्स पॉलिसियों का जायज़ा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आइंदा 10 दिनों में गवर्निंग बॉडी को क़तियत देने की हिदायत दी है। जितना जल्द हो सके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल तैयार किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी बैनुल-अक़वामी मुकाबले के स्पोर्ट्स कैलेंडर्स को तैयार रखने की भी हिदायत दी जाए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मुफ्त बरक़ी के नाम पर कांग्रेस हुकूमत अवाम पर बोझ डालने की कोशिश कर रही है। सिरसिल्ला में ईआरसी की जानिब से मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस हुकूमत मुफ्त बरक़ी के नाम पर अवाम पर 18,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा, मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ने की साजिश की जा रही है। डिस्कॉम की जानिब से दी गई तजावीज़ को मुस्तरद करने की उन्होंने अपील की। केटीआर ने कहा, 300 यूनिट से बढ़कर इस्तेमाल करने पर फिक्स डे चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर देना समझ से बाहर है। केटीआर ने कहा, अदानी की कंपनियों और छोटे कंपनियों के लिए एक ही कीमत रखना फजूल फैसला है। केटीआर ने कहा कि 10 साल में हमने 1 रुपये का इजाफा नहीं किया था, यह हुकूमत भी 1 रुपये का इजाफा ना करे।
अगर 1 रुपए का इजाफा किया गया तो हम अवाम की तरफ से जिद्दोजहद करेंगे। తెలంగాణ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఈరోజు సిరిసిల్లలో నిర్వహించిన బహిరంగ విచారణలో మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు మా పార్టీ తరఫున ఇక్కడ సిరిసిల్లలో స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా నేను ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ పేరుతో ఉన్న విద్యుత్తును ఊడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామనే సాకుతో 18,500 కోట్ల అదనపు భారాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల మీద మోపే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. చాలా అసంబద్ధమైన చాలా అశాస్త్రీయమైన ప్రతిపాదనలను ఇవాళ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో ఉండే మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాల నడ్డి విరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నదని మేము భావిస్తున్నాం. అందుకే ఈ ప్రతిపాదనను నిర్ద్వందంగా తిరస్కరించాలని చెప్పి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కు మేము విజ్ఞప్తి చేసినాం. दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि असली बम से नहीं डरते हैं तो वह बातों के बम से खौफजदा नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के बयान का हवाला दिया और कहा कि बम फोड़ने वाले हैं तो उन्होंने समझा कि पी श्रीनिवास रेड्डी पर ईडी धावे के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ईडी रेड्डी में कितने करोड़ रुपए मिले इसका खुलासा करने वाले हैं। इसके अलावा दीगर मामलात में तहकीकात को हुक्म देने वाले हैं। हम समझ रहे थे कि लक्ष्मी बम सुतली बम है, लेकिन ये तो बातों का बम निकला। केटीआर ने कहा अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो दर्ज कर लें, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। బీజేపీలు స్పందిస్తలేరు, మరి దాని మీద ఏమైనా విచారణకు ఆదేశిస్తారు? ఆ బాంబా ఇది లక్ష్మీ బాంబా సుతిల్ బాంబా తుస్సు బాంబా అన్ని తెలుతాయి. మా మీద ఏదైనా కేసు పెట్టదలుచుకుంటే ఏం పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో, ఏం పిక్కుంటావో పిక్కు, మాకు ఫరక్ పడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కొత్త పిచ్చగాళ్ళని చాలా మందిని చూసినాం. రాజశేఖర్ రెడ్డితో కొట్లాడినాం, చంద్రబాబుతో కొట్లాడినాం. ఈ చిట్టినాయుడు గారు పెద్ద లెక్క కాదు, మాకు ఏం చేసుకుంటాడో చేసుకోమని। सिटी सिविल कोर्ट ने रियासती वजीर कोंडा सुरेसा की सरजनिश करते हुए दोबारा केटीआर के खिलाफ इस तरह बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा पर 100 करोड़ रुपए के हतक इज्जत के दावे के केटीआर के मुकदमे की जुमे को समाप्त हुई। सिटी सिविल कोर्ट ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा को हिदायत दी कि वो दोबारा इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें। कोंडा सुरेखा ने केटीआर के खिलाफ जो बयान दिया है उसके वीडियोज गूगल, यूट्यूब, एक्स, मेटा से निकाल देने की हिदायत दी है। आंधा समात 11 नवंबर तक मुलतवी की गई है। वाज़ेह है कि केटीआर ने उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर हद तक इज्जत का दावा पेश किया था। हुकूमत के विप ए श्रीनिवास ने कहा केटीआर को जेल जाने का खौफ पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था जेल जाने के टेंशन में जो चाहे बयान दे रहे हैं, मरने के लिए तैयार रहने वाले केटीआर अब खौफ क्यों खा रहे हैं। 10 साल में जो बदनवानी की है वो मंजरेआम पर आने का खौफ केटीआर में दिखाई देता है। 4 दिन रुक जाएं, हम क्या करने वाले हैं केटीआर को पता चल जाएगा। पार्टी बदलने वालों को फाहशा कहते हैं तो बीआरएस पार्टी ने अपोजिशन लीडर को वजीर बनाया, उनको क्या कहना चाहिए। ए श्रीनिवास ने कहा 4 दिन ठहर जाएं, रेवंत रेड्डी कौन है केटीआर को पता चल जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ दिल्ली रवाना हुए हैं। 2 दिन दिल्ली में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान वो पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से आला कमान को वाकिफ कराया जाएगा। सदर पीसीसी पार्टी आमला कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक जगतियाल में जीवन रेड्डी के हामी के कत्ल के मामले में भी आला कमान से तबादले ख्याल किया जाएगा। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर जी वेंकट रमना ने कहा रेवंत रेड्डी ने किसानों को इंतखाबात से पहले झूठा दिलासा दिया था। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था किसानों से जो वादे किए गए उसे पूरा नहीं किया गया। हुकूमत संजीदा है तो फौरी सीसीई मराकज़ कायम करें। उन्होंने सवाल किया कि रैतू भरोसा कब से देंगे, इसका खुलासा करें। अवाम अगर सवाल कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। कांग्रेस कायदीन अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का महासभा करें। बीआरएस पार्टी कायदीन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाले बटालियन जवानों के अफराद खानदान ने सेक्रेटेरिएट के पास धरने की कोशिश की। इस धरने में पुलिस मुलाजमीन की बीवियां भी शामिल थीं और उनका मुतालबा था कि रियासत में एक पुलिस एक कानून पर अमल किया जाए। खवातीन ने कहा
उनके शौहरों के साथ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है, जबकि वो पढ़े लिखे हैं। उनके शौहर महीने में एक बार घर आते हैं और उनकी मुलाजमत बाइज्जत नहीं है। एहतजाजी खवातीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया। एहतजाजियों ने कहा कि बीमार और हामिला खवातीन को तक गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा, कांग्रेस हुकूमत में बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ग्रुप 1 के उम्मीदवार जियो 29 के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में दस्तूर के मुताबिक फैसला आएगा। उन्होंने बैकलॉग पोस्ट के बगैर हुकूमत से जियो जारी करने का मुतालबा किया। प्रवीण कुमार ने कहा, कांस्टेबल के अफराद खानदान सड़कों पर हैं। वजीर आला पुलिस महकमे पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से फिर मुतालबा किया कि हुकूमत जियो 29 पर नजरसानी करे। चार मीनार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुकूमत हिंद की जानिब से तारीखी व सकाफती वरसे का हामिल महफूज करार दिया गया है, जहां 500 मीटर तक किसी किस्म की खुदवाई, तामीर वगैरह की मुमानियत है। वहां बरकी सरबराह करने वाली कंपनी तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से एक बरकी ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए प्रोक्लेन के जरिए खुदाई की गई। जहां ये खुदाई की गई वो चार मीनार पैदल राहरू का इलाका है। प्रोक्लेन मशीनों के जरिए खुदवाई के दौरान यहां पर लगाए गए कीमती पत्थरों को मिसमार कर दिया गया। यही नहीं, ज़ेर ज़मीन वाटर लाइन, सीवरेज लाइन व दीगर मवासलाती नेटवर्क भी तबाह हो गया। बरकी इदारों की जानिब से इस गैर मजाज खुदवाई की इत्तला पाकर मजलिस के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी वहां पहुंचे और बरकी के ओहदेदारों से इस खुदवाई का जवाब तलब किया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की तनसीब उनके इल्म में नहीं, जबकि उसके चंद कदम पर BSNL के दफ्तर से मुत्तसिल एक ट्रांसफार्मर मौजूद है। इसके अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर यूनानी जनरल हॉस्पिटल में बरकी के एक सब स्टेशन को मंजूरी दी गई। इसके बावजूद पैदल राहरू प्रोजेक्ट के अहाते में इस तरह की खुदवाई गैर मजाज है। इस खुदवाई के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ओहदेदारों को इत्तला दी गई। ओहदेदारों ने भी इस मुकाम का मायना किया और चले गए। मुतालिका रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर की मुदाखलत पर फिलपौर इस खुदवाई को रोक दिया गया। बताया जाता है कि चंद मफादात हासिला की मां पर बरकी के ओहदेदारों ने एक खुदवाई अंजाम दी। मालूम हुआ है कि पैदल राहरू प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर जहां खुदवाई की गई, उससे मुत्तसिल इलाके में चार मीनार की एक गैलरी कायम करने की तजवीज़ है, ताकि जो सयाह चार मीनार देखने आते हैं उन्हें इस अजीम तारीखी इमारत का पस मंजर पेश किया जाए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने जोनल कमिश्नर डॉक्टर अनुराग जयंती और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तरक्याती कामों के बशमूल दूसरे उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कमान मीरालम मंडी, छत्ता बाजार की कमान के अलावा मीरालम मंडी को असली बनाने के काम भी शामिल हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबी ने फलकनुमा डिवीजन के इलाके अमजदुद्दौला बाग में 39,45,000 रुपए की लागत से 900 mm कतर की बड़ी पाइपलाइन और सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इससे पहले इलाके में 600 mm कतर की पाइपलाइन थी, जिससे मसाइल पैदा हो रहे थे। एक नई NP2 पाइपलाइन जिसका खतर 900 mm है बिछाई जा रही है। इससे पानी के बहाव में आसानी होगी। इसके अलावा मदीना कॉलोनी में वाक़े मकानात में बारिश का पानी दाखिल हो रहा था, इसका काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के कारकुन मौजूद थे। रुकन बलदिया पत्थरगट्टी सुहेल महमूद कादरी की मौजूदगी में मौला के चिल्ले के पास सीवरेज काम करवाने के दौरान महकमे आबरसानी के आला ओहदेदारों की टीम भी अचानक पहुंच गई। सुहेल महमूद कादरी ने मीडिया को बताया कि महकमे आबरसानी की टीम में MD अशोक रेड्डी के अलावा CGM नागेंद्र रेड्डी और जनरल मैनेजर के अलावा दूसरे ओहदेदार शामिल थे। कॉरपोरेटर ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से ये मसला चल रहा है, जिससे मज़कूरा इलाकों के घरों में मोरियों से पानी पलट रहा है। प्रजा भवन के पास जुमे को गुरुकुल टीचर्स ने मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि अहल उम्मीदवारों का फौरी तौर पर तकर्रुर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बर वक्त तकर्रुरात न होने से कई जायदादें मखलूआ हैं। इम्तिहान में कामयाबी के बावजूद तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस की तरफ से ड्रग पेडलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है।
हिमान नगर पुलिस ने HNEW के साथ मिलकर बैरूनी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने बताया कि हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस ने इस सिलसिले में ड्रग्स की मुंतकली के खिलाफ इक़दाम शुरू किए हैं। दूसरे शहरों से हैदराबाद ड्रग्स मुंतकिल करने वालों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई जारी है। सिंथेटिक्स ड्रग्स को गोवा, बेंगलुरु, मुंबई से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि उड़ीसा से गांजा हैदराबाद लाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 टोलियों को गिरफ्तार किया गया जो बेंगलुरु से अपना कारोबार चला रहे थे। हनीन, जिसका असली नाम अब्दुल रहमान बताया गया और ये सूडान का शहरी है, बेंगलुरु में मुकीम था, हैदराबाद में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने 50 ग्राम MDMA जब्त किया है। हनीन टोली चौकी में भी मुकीम बताया गया। हनीन सूडान के ही शहरी कोरबा से ड्रग्स हासिल किया करता था और कमीशन पर ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उस्मान और कोरबा को भी गिरफ्तार किया है और बाज़ सारिफीन को भी पकड़ा है। जब्त किए गए MDMA की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने कंचनबाग पुलिस के यहाँ पर बताया गया है कि एक बैन रियासती ड्रग पेडलर और 2 मुकामी ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इन अफराद के पास से 80 ग्राम LSD ब्लॉट्स और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जुमला जब्त किए गए ड्रग्स की मालियत 13 लाख रुपए बताई गई है। तांडूर में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड तांडूर रेलवे गेट के पास श्रीकांत ने अपनी बीवी सुजाता का कत्ल किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और एबिट्स पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर जगदीश मार्केट में 4 दुकानों पर धावे करते हुए नकली एप्पल फोन के नकली एक्सेसरीज को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि निम सिंह, हीराराम, गोविंदलाल चौहान, मुकेश जैन को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के कब्जे से 579 एयरपॉड्स प्रो, 351 USB एडाप्टर, 747 USB पावर केबल, 62 बैटरियां, 17 पावर बैंक और 1401 बैक पॉच जब्त किए गए। इनकी मालियत 2,42,55,900 बताई गई है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पटाखों के गैर कानूनी जखीरे के गोदाम पर धावा किया। पुलिस ने सिलसिले में मेहदीपट्टनम मुरादनगर के साकिन श्रीराम को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए पटाखों की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। अपार्टमेंट में पटाखों का जखीरा किया गया था और इसके लिए कोई लाइसेंस भी हासिल नहीं किया गया था। राजेंद्र नगर के हैदरगोड़े में बच्चे के मुबैना अगवे के शक पर एक शख्स की पिटाई कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक नशे की हालत में शख्स बच्चे को मुबैना तौर पर साइकिल पर बिठाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर मुकामी लोग बरहम हुए और इसे खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेदक जिले के तोपरान में कारों के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। लिम्बरा मोटर्स में अचानक आग लग गई। फौरी फायर इंजन को तलब किया गया, जब तक 8 गाड़ियां जलकर खाकिस्तार हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। जनूबी रियासतों से नरेंद्र मोदी का तासुब, शुमाल जनूब तवाजुन को बिगाड़ दिया गया। मीडिया समिट से वजीर आला का खिताब। बापू घाट पर महात्मा गांधी का बुलंद कामत मुजस्समा होगा। अवाम पर 18,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। डिस्कॉम की तजावीज को मुस्तरद करने का केटीआर ने किया ऐलान। कांग्रेस में राह कुछ नहीं बिगाड़ सकती, केटीआर का दावा। 4 दिन ठहर जाए, रेवंत रेड्डी कौन है मालूम हो जाएगा कांग्रेस का जवाब। ड्रग्स मुंतकली के खिलाफ सिटी पुलिस का क्रैकडाउन जारी। बैन रियासती और मुकामी पेडलर्स गिरफ्तार। 13 लाख रुपए मालियत के ड्रग्स जब्त। एप्पल मोबाइल फोन के नकली एक्सेसरीज की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। पटाखों के गैर कानूनी जखीरा करने वाला भी हिरासत में, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।